MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے۔ اس نے ہم سبوں کو دین کی مجلس میں بیٹھ کر کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں۔ اتنے بڑے جلسے میں کیا بیان کروں، کیا تقریر کروں؟ مجھے نہ تقریر معلوم ہے نہ بیان کرنا مجھے معلوم ہے۔ بہرحال یہ بہت متبرک جگہ ہے اور علماء کرام کی بھی جمع غفیر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک سورت تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے قسم وہاں کھایا جاتا ہے، قسم وہاں دلایا جاتا ہے۔ قسم وہ کھاتا ہے جس پر کبھی جھوٹ کا شبہ ہو، جس پر جھوٹ کا شبہ ہو کہ یہ جھوٹ کہہ سکتا ہے یا یہ سچ کہتا ہے۔ اگر کسی پر شک ہو تو وہاں قسم دیا جاتا ہے۔ لیکن احکم الحاکمین، دو جہانوں کے بادشاہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک دو جہانوں کے بادشاہ، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، اسے کچھ قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن میرا اللہ، میرا پیارا اللہ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کھانے کے بعد آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان گھاٹے میں ہے، پورے کے پورے انسان نقصان میں ہے، پورے کے پورے انسان لاس میں ہے، پورے کے پورے انسان فائدہ میں نہیں ہے۔ اللہ پوری دنیا والوں کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے انسان خسارے میں ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو جائیداد والا ہے، جو مالدار ہے، جو امیر ہے، جو کبیر ہے، جو بلڈر ہے، جو ایکٹر ہے، جو ڈائریکٹر ہے، جو فائٹر ہے، جو کھلاڑی ہے، جو ہیروئن ہے یا ڈیس کر رہا ہے، اگر اللہ نے انہیں مال دیا ہے، اگر اللہ نے انہیں جائیداد دی ہے، اگر اللہ نے انہیں بلڈنگ دی ہے، ہم اپنی نظروں سے یہ دیکھتے ہیں وہ عزت والے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ شہرت والے ہیں۔ دنیا ان کی قدم چومتی ہے، دنیا انہیں دیکھنے کے لیے قطار میں کھڑی رہتی ہے، دنیا انہیں دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑی رہتی ہے۔ جہاں ان کا نام اعلان ہوتا ہے، مجمع بغیر بلائے، مجمع کو
बगैर कहे मजमा वहां भीड़ लगा देता है, जबकि मेरा अल्लाह कहता है हरगिज हरगिज नहीं, वो कामयाब नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वलासुर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति। अल्लाह कहते हैं कामयाब वो है, कामयाब शख्स वो है, इज्जतदार वो है जिसने ईमान लाया और मुत्तकी बना, नेक आमाल किया, मस्जिद को आबाद किया, कलाम पाक जिसने पढ़ा, जिसने नमाज पढ़ा, जिसने रोजा रखा। अल्लाह ये कहते हैं हम अपनी नजरों से ये देखते हैं, उसके बिल मुकाबिल देखते हैं, उसके उल्टा देखते हैं कि अगर अल्लाह ने किसी को मालदारी दी है, उसके घर में नमाज ही नहीं है, वो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो खुद रोजा नहीं रख रहा है, वो खुद मालदार होने की वजह से हज भी नहीं कर रहा है, न वो कभी सदका दे रहा है, न कभी वो ज़कात दे रहा है, न कभी वो यतीमों का किफालत कर रहा है, न कभी वो सदका देकर किसी गरीब पर एहसान कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन हम अपनी नजरों से देख रहे हैं इज्जत वाला है, शोहरत वाला है, रफ़अत वाला है, उसका नाम लोग उसके नाम को इज्जत से लेते हैं, एहतराम से लेते हैं, अदब से लेते हैं। आखिर वजह क्या है? मेरा अहकमुल हाकिमीन, मेरा पालनहार, दो जहानों का बादशाह ये कहता है हरगिज हरगिज नहीं। अगर किसी के पास माल है, किसी के पास जायदाद है, किसी के पास दौलत है, वो इज्जत वाले नहीं है। अगर उन्होंने इल्म दीन, उन्होंने शरीयत मुतहरा पर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सल्लम के तरीके पर अपने जिंदगी को नहीं गुजारा तो वो इज्जत वाले नहीं है। मुझे एक वाकया याद आ गया। बचपन के ज़माने में मैं भी छोटा बच्चा था तो गलियों में घूमता था, कभी गलियों में दौड़ता था, गलियों में चक्कर लगाता था। एक वाकया ये है कि एक गली में मैं भी घूम रहा था, मैं भी दौड़ रहा था। आप लोग भी घूमते होंगे। अपने बचपनी के ज़माने में एक अचानक कानों में एक आवाज़ आई, एक डबडुबी की आवाज़ आई, एक ढोल की आवाज़ आई। देखा कि मजमा हुआ जमा था, मैं भी वहाँ पहुँच गया और डुबडुबी को देखने के लिए कि इसने किस वजह से अपने ढोल को बजाया, अपने ताशे को बजाया, अपने डुबडुबी को बजाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो तब तक मैंने देखा 50 और 100 लोग पहले से वहाँ मौजूद थे। एक आदमी था, वो डुबडुबी बजाया, बजाने के बाद सभी लोगों को कहा कि आप लोगों से गुजारिश है जोरदार ताली मारें। लोगों ने ताली मारा। फिर उसने कहा मैं कुछ खेल दिखाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ एक्टिंग दिखाना चाह रहा हूँ, मैं जादू का खेल आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। लोगों ने कहा जी हुजूर आप पेश कीजिए। उसने सबसे पहले ये किया कि आप लोग ताली मारिए, हाथ को खोल दीजिए, कोई भी आदमी हाथ को इस तरह बंद करके खड़ा न हो। सबों ने हाथ को खोल दिया। उसने खेल दिखाना शुरू किया। सबसे पहले कुछ कागज को लाया और खाना शुरू किया। सभी से पूछा कि आप लोग बताइए मैं क्या खा रहा हूँ। सभी ने कहा कि आप जो हैं कागज खा रहे हैं, आप इस वक्त अपनी जुबान मुबारक पर कागज को रखे हुए हैं। कहने लगा नहीं नहीं, आप लोगों ने गलत कहा, आप लोगों ने झूठ कहा, आप लोगों ने भूल कहा। सभी कहने लगे कैसे हो सकता है, हमने अपनी नजरों से देख रहे हैं कि आप इस वक्त हमारी नजरों के सामने कागज को खा रहे हैं। फिर उसने कहा क्या आप लोग सच कह रहे हैं कि मैं कागज खा रहा हूं? सभी हजरात ने कहा बिल्कुल, हम अपनी नजरों से ये देखकर ये कह रहे हैं कि आप अभी इसी वक्त कागज खा रहे हैं। उसने थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगा आप लोग जोरदार ताली मारिए। फिर लोगों ने ताली मारा। उसके बाद आनन फानन उसने अपनी जुबान से कुछ निकालने लगा। जब उसने अपनी जुबान से निकाला तो वो 100 का नोट था, 500 का नोट था, 10 का नोट था, 20 का नोट था, 50 का नोट था। उसने कहा आप लोगों ने तो ये कहा था कि मैं कागज खाया था, मैं कागज खाया था, तो पैसे कैसे निकले? फिर लोगों ने खामोश होकर तमाशे की तरह खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद उसने एक डब्बे को लाया। डब्बे को लाने के बाद उस डब्बे के अंदर कंकर को डाला, गोरी को डाला, ईंट को डाला, खेपरे को डाला। फिर पूछा कि मैं इस डब्बे के अंदर क्या डाला हूँ, मैं इस डब्बे के अंदर क्या रखा हूँ, मैंने इस डब्बे के अंदर क्या रखा?
सबों ने कहा कि हमने अपनी नजरों से ये देखा, तुमने डब्बे के अंदर खेपरा डाला, कंकर डाला, गोरी डाला, ईंट डाला। कहने लगा नहीं नहीं, मैंने इस डब्बे के अंदर कंकर नहीं डाला, मैंने इस डब्बे के अंदर गोरी नहीं डाला, मैंने इस डब्बे के अंदर खेपरा नहीं डाला, आप लोगों ने गलत दिखा, आप लोगों ने गलत देखा। सभी ने कहा हजरत हम अपनी आंखों से देखे, हमने अपनी नजरों से देखा, आपको डालते हुए देखा, आपको डब्बा खोलते हुए देखा, हम कैसे गलत देख सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा आप लोगों से गुजारिश है फिर ताली मारिए। लोगों ने फिर ताली मारा। उसके बाद उसने क्या किया, डब्बे के मुंह को खोल दिया, उस ढक्कन को खोल दिया। खोलने के बाद डब्बे को उंडेल दिया, उसके पीछे को ऊपर कर दिया, मुंह को नीचा कर दिया। हम लोगों ने अपनी नजरों से देखा, अपनी आंखों से देखा, देखते खड़े थे कि हमने ये देखा कि डब्बे के अंदर उसने जो कुछ डाला था उसका बरस निकला, पैसा निकला, कॉइन निकला, 1 रुपया वाला कॉइन निकला, 5 रुपया वाला कॉइन निकला, 10 रुपया वाला कॉइन निकला। उसने कहा आप लोगों ने तो ये कहा था कि मैंने इस डब्बे के अंदर कंकर डाला था, खेपरा डाला था, गोरी डाला था, फिर पैसे कैसे निकला। सब लोग हक्का बक्का रह गए। बहरहाल बात आई गई, खत्म हो गई, उसका ड्रामा खत्म हो गया, उसका एक्टिंग दिखाना मुकम्मल हो गया। आखिर में उसने जब खेल खत्म कर दिया, एक आवाज लगाई कि जितने हजरात यहाँ खेल देखे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, आजिजाना गुजारिश है कि सभी हजरात, मैं एक लाल गमछा बिछाता हूँ, एक रुमाल डालता हूँ, उस रुमाल में जो आपके पास हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, उसमें डाल कर जाएं, बगैर डाले कोई घर मत जाना। थोड़ी देर के बाद उसने रुमाल बिछाने के बाद जब ताखीर हुई, जब देर हुई, उसने वार्निंग देना शुरू किया। देखो खेल देखने के बाद, तमाशा देखने के बाद, एक्टिंग देखने के बाद अगर किसी ने रकम नहीं डाला, पैसा नहीं डाला, अगर घर में उसका छोटा बच्चा होगा, अगर घर में उसकी छोटी बच्ची होगी, तो रात में डरोना ख्वाब देखेगा। कभी सांप का ख्वाब देखेगा, कभी जिन्नात का ख्वाब देखेगा, कभी भूत का ख्वाब देखेगा, कभी शैतान का ख्वाब देखेगा। इतना सुनते ही जो औरतें देख रही थी, जो मर्द देख रहे थे, मजबूरन अगर अपने पास नहीं था, किसी से धार लिए, अपने पास नहीं था, घर से जाकर लेकर आए, लेकर आने के बाद उस रुमाल में डाला, उस कपड़े में डाला, उस गमछे में डाला। मेरे दिल में अब ये ख्याल आ रहा है कि अगर ये आदमी इतना पावरफुल है, ये आदमी इतना मुआजिजा जाहिर कर सकता है, ये आदमी के अंदर इतना कैपेसिटी है, इस आदमी के अंदर इतना पावर है, आप ही लोग बताइए इसको एक गली और कुचों में ड्रामा दिखाने की क्या जरूरत है, मेहनत करने की क्या जरूरत है। अगर यही आदमी घर में बैठ जाता, इसी तरह एक डब्बा ले आता, बड़ा डब्बा ले आता, वो धान का डब्बा ले आता, उसमें कंकर डालता और हिलाता, फिर उसको उंडलता, रात भर के अंदर इतना करने के बाद फिर वो कागज को ले आता, कागज को खाता, खाने के बाद उसी तरह रकम निकालता। आप ईमानदारी से बताइए 1-2 रात में इतना गरीब नहीं होता। 1-2 रात में वो टाटा बिरला से ज्यादा, अंबानी से ज्यादा, अदानी से ज्यादा वो तो मालदार हो जाता, इसलिए कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, उसके अंदर इतनी ताकत है, उसके अंदर इतनी पावर है। आखिर वजह क्या है कि इतना पावरफुल आदमी होने के बाद, इतना ताकत होने के बाद एक गली कुचों में ड्रामा दिखाता है, आखिर में चावल भीख मांगता है, 1 रुपया भीख मांगता है, 2 रुपया भीख मांगता है। आखिर वजह क्या है? जब उससे पूछा गया भाई तेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है, तो यही ड्रामा घर में बैठ के कर लेना। कहेगा हकीकत में ये तो ड्रामा था, मैं जैसा कह रहा था तुम्हें वैसा ही नजर आ रहा था, मैंने तुम्हारे आंखों में पट्टी डाल दिया था, मैं तुम्हारे आंखों को
بند کر دیا تھا. میں اپنے جاتو کے ذریعہ اپنے پت کے ذریعہ جو کہتا تمہیں وہی نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آج تمہارے دلوں میں تمہاری آنکھوں میں دنیا کی محبت کی پٹی پڑی ہوئی ہے. آج تم دنیا کے اندر کھو گئے ہو, دنیا کے محبت کے اندر کھو گئے ہو, دنیا کے مالوں کے اندر کھو گئے ہو, دنیا کے جائیدادوں کے اندر کھو گئے ہو. حقیقت میں تم جسے عزت والا دیکھتے ہو, جسے تم شہرت والا دیکھتے ہو, جسے تم عہدہ والا دیکھتے ہو, اللہ کہتے ہیں تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ عزت والے نہیں ہیں. اگر عزت انہیں ملتی, مالداری میں عزت ہوتی, اگر شہرت میں عزت ہوتی تو فرعون سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں تھا, حامان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا, شداد سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. اللہ انہیں عزت دیتے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کہتے ہیں کامیابی اور عزت سب کچھ میں نے میرے راستے میں رکھا ہوں. اگر آپ لوگ اللہ والے بن جائیں, پھر اللہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے 316 صحابہ کرام کو عزت دی تھی, وہی اللہ آج ہمیں بھی عزت دیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.